Starting with point 33 of Rafi, we are doing cell physiology. The first one is resting membrane potential is achieved by potassium efflux, ठीक है, whereas resting membrane potential is maintained by sodium potassium pump. Clear? Now depolarization. Depolarization of membrane is due to sodium ions influx, whereas repolarization is due to potassium ions efflux. Hyperpolarization. Hyperpolarization, after action potential is over, potassium channels remain open. Membrane potential becomes close to the potassium equilibrium, is hyperpolarization. Next is plateau of action potential, which is calcium in while potassium out. Plateau is maintained or plateau is formed in any membrane potential when there is calcium ions influx and potassium ions outflux. Clear? Or efflux. The next is, now we will be discussing some of paper MCQs. The first one is regarding cat electronic potential. So cat electronic potential is all or none potential. Clear? The next is hyperpolarization of neurons is due to potassium efflux. Resting membrane potential is maintained by sodium potassium ATPase pump. The next is neuronal repolarization is due to potassium efflux. ठीक है. After hyperpolarization in action potential, there is increase in which of the following? It is potassium ions. About astrocytes action potential is generated with increased extracellular potassium ions. Clear? हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है, विद इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम आयंस. The next is repolarization is due to potassium efflux, whereas depolarization is due to sodium ions influx. Clear? The next is, but there is difference in organ of Corti. ठीक है, ये जो हमारे पास इनर ईयर का एक पार्ट है organ of Corti, इसमें क्या होता है? Which of these is responsible for depolarization of action potential in organ of Corti? It is potassium ion influx to the hair cells. ये क्लियर हुआ? दिस इज़ द डिफरेंस. ये जो हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है इनर ईयर में, वहाँ क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ सेल होती है पोटेशियम आयंस इनफ्लक्स की वजह से. क्लियर? बाकी सेल्स में हमने पढ़ा था सोडियम आयंस का. क्लियर? जबकि ये जो हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है, इस पे पोटेशियम आयन इनफ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होगी. हेयर सेल्स इन द इनर ईयर आर अनयूजुअल दैट दे यूज पोटेशियम इनफ्लक्स फॉर डीपोलराइजेशन रादर देन सोडियम आयंस. क्लियर? The next is utricle hair depolarization is due to potassium influx. बस आप याद रखो कि हमारे जो इनर ईयर का ये ऑर्गन है, ठीक है, इनर ईयर में यहाँ पर पोटेशियम के इनफ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होगी. ठीक है, बाकी जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन कैसे हो रही है? सोडियम के इनफ्लक्स से हो रही है. क्लियर? The next is action potential is reduced due to hyponatremia. Clear? अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ कब होगा, इंक्रीज़ कब होगा. ठीक है, सस्टेन्ड, ये सारी चीज़ें. द फर्स्ट वन इज़ एक्शन पोटेंशियल इज़ रिड्यूस ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया. ठीक है, जब भी हाइपोनेट्रीमिया होगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा. इन 40% ऑफ डीप बर्न केसेस आयन लॉस ड्यूरिंग डिक्रीज कॉजिंग एक्शन पोटेंशियल इज़ हाइपोनेट्रीमिया. क्लियर? जब भी हमारे पास बर्न्स होंगे, ठीक है, बर्न्स में क्या होता है? सोडियम आयंस जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो आपने याद रखना है, इट इज़ हाइपोनेट्रीमिया विच इज़ डिक्रीजिंग द एक्शन पोटेंशियल ऑफ the membrane. A patient with 40% burns, there is loss of water and electrolytes. Which of the following electrolytes normally be present associated with low voltage of action potential? जो action potential को decrease कर रहा है burns के patient के अंदर, this is hyponatremia. Clear? Local cell responsible to action potential is increased amplitude and increased stimulus. Clear? एक्शन पोटेंशियल के लिए लोकल सेल रिस्पॉन्स क्या होता है कि एम्पलीट्यूड और दूसरा स्टिमुलस जो है वो इंक्रीज होता है. एक्साइटेशन ऑफ नर्व ट्रंक इज़ शोन बाय कंपाउंड पोटेंशियल. क्लियर? ये याद रखने वाला पॉइंट है कि हमारे पास नर्व ट्रंक का जो एक्साइटेशन है वो कैसे शो होता है? कंपाउंड पोटेंशियल से शो होता है. क्लियर?
The next is potential recorded after stimulating nerve trunk, that is depolarization, is compound action potential. The same MCQ has been repeated. Regarding myelinated fibers action potentials at internodes, ये याद रखो कि ये जो हमारे पास इंटरनोड्स थे, दो नोड्स के बीच वाली जगह, ठीक है, जहाँ पे सॉल्टेटरी एक्शन थी, ठीक है, वो जंपिंग यू, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है कि एक्शन पोटेंशियल इन इंटरनोड्स के बीच में जनरेट हो रही होती है. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज आ ड्रग. अच्छा, नेक्स्ट इज ट्रू रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल इज सब्सीक्वेंट एक्शन पोटेंशियल्स कैन समेट. क्लियर? सब्सीक्वेंट एक्शन पोटेंशियल्स का जो है हमारे पास क्या होता है, समेट, मतलब उनको हम लोग सम अप करते हैं तो उसका जो है हम उसको देखते हैं कि हाई वोल्टेज की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ है. आ ड्रग कम्प्लीटली ब्लॉक्ड sodium channels in nerves. Which of the following effects on the action potential would be expected to produce? तो block the occurrence of action potential. जब भी हम जो है कोई भी ऐसा ड्रग देंगे जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट होने से रोक रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है. क्लियर? The next is it also comes as when the fibers placed in sodium free solution is stimulated, there is no action पोटेंशियल. ठीक है, सोडियम फ्री सोल्यूशन जब होगा, ठीक है, यानी आप यही सपोज कर लें कि सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए या सोडियम आइंस है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, बल्कि हमने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने से रोक दिए ड्यू टू दी सोडियम डेफिशिएंसी, या सोडियम फ्री सोल्यूशन बना दिया था. The next is nerve is placed in sodium water free medium. The threshold stimulus was given what will happen next? No action potential. क्योंकि हमें पता है सोडियम फ्री वाटर मीडियम जब क्रिएट कर लिया तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, तो नो एक्शन पोटेंशियल. Sodium inactivation gate closing represent a which phase of the action potential? Absolute refractory phase या period. ठीक है, सोडियम इनएक्टिवेशन गेट क्लोजिंग में क्या हो रहा होता है, हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है. ठीक है, इसको आप याद कर लो एज इट इज़. A fisherman after burns was brought to emergency department. Which of the following electrolyte imbalance cause a decrease in height and slope of action potential? As we have already discussed कि burn patient के अंदर water की और electrolytes की क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और electrolytes में भी सोडियम की, तो it is hyponatremia. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट लो पोटेंशियल पे होगी, और बहुत ज़्यादा हाइपोनेट्रीमिया है तो एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट ही नहीं होगी. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द हाइट एंड स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल? तो इट इज़ हाइपोनेट्रीमिया. ठीक है, सोडियम की डेफिशिएंसी में क्या होगा, हाइट एंड स्लोप ऑफ ये जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगी. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज़ 4 कन्फ्यूजिंग MCQs. ये जो मैं अभी आपको शुरू में बता रही थी कि हमें पता होना चाहिए कि ये एक्शन पोटेंशियल की हाइट डिक्रीज़ कब हो रही होती है, ठीक है, किन आइंस की हमने कंसंट्रेशन देखनी है. ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट वन इज़ 4 कन्फ्यूजिंग MCQs. ठीक है, हाइपोकैलीमिया इन न्यूरॉन्स कॉजेज हाइपर पोलराइजेशन. हमेशा याद रखो कि हाइपोकैलीमिया है, जब भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी न्यूरॉन्स में तो हाइपर पोलराइजेशन होगी. ठीक है, जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखो तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स अकर्स ड्यू टू डिक्रीज्ड कैल्शियम आयन. क्लियर? अब ये जो हमारे पास था हाइपोकैलीमिया की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो रही है. क्लियर? और जब भी हमारे पास कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है, डिक्रीज होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो उस वक्त क्या हो जाएगी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी. इज़ दैट क्लियर? जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आइंस डिक्रीज होगा, नर्व्स हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में चले जाएंगे. क्लियर? नॉर्मली हमने क्या कहा था कि एक्शन पोटेंशियल तो मुश्किल से ही जनरेट होगी जब सोडियम की डेफिशिएंसी होगी. क्लियर? लेकिन अगर कैल्शियम आइंस की डेफिशिएंसी है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी. क्लियर? तो इसको आपने ऑपोजिट करके याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है. द नेक्स्ट वन इज नर्व स्टिमुलेशन इज मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट इन एक्शन पोटेंशियल इन विच कंडीशंस? तो इट इज़ हाइपोकैलीमिया. इसको आप याद रखो कि जब भी हमारे पास हाइपोकैलीमिक कंडीशन होगी तो नर्व स्टिमुलेशन इज डिफिकल्ट टू क्रिएट. हाइट डिक्रीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज इन हाइपोनेट्रीमिया. क्लियर? हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल की जो हमारे पास हाइट होगी वो क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर?
Okay, now let's remember these points as well. The initiation of action potential in skeletal muscles by stimulating its motor nerve, it requires the release of acetylcholine. Clear? acetylcholine के रिलीज से ही skeletal muscles का एक्शन पोटेंशियल जनरेट या इनिशिएट होगा. क्लियर? अदरवाइज नॉट. तो इट इज़ acetylcholine. क्लियर? A slow wave in small intestine, smooth muscles are oscillating resting membrane potentials. Clear? ये जो हमारे पास इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, ठीक है, और वहाँ पर स्लो वेव्स ऑल द टाइम जनरेट हो रही होती हैं, तो वो हमारे पास कौन सी वेव है? ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं. क्लियर? The next is ECG initially inhibits rhythmical potential fluctuations. The underlying rhythmic neuron activity of the cortex has its pacemaker activity chiefly in reticular formation. तो आप इसको याद रख लो कि ये जो हमारे पास rhythmical potential fluctuations हो रही होती हैं, ये पेस मेकर के अंदर, जब भी हम पेस मेकर फिक्स करेंगे तो उसमें क्या होता है? रिदमिकल पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं. तो ये हमारे पास इसकी एक्टिविटी मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे हो रही होती है? रेटिकुलर फॉर्मेशन में हो रही होती है. क्लियर? आपको याद है रेटिकुलर फॉर्मेशन इस तरह की हम एक चीज़ पढ़ते थे ब्रेन की. अच्छा, the next is receptors act as transducers by increasing the response to repeated stimulus. Clear? Transducers कैसे receptors की तरह एक्ट कर रहे होते हैं कि जब भी बार बार हमारे पास repeated stimulus होगा तो इनका रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो जाएगा. क्लियर? ट्रांसड्यूसर्स का. तो ये ऐसे काम करते हैं. क्लियर? अब हम करेंगे अगला पॉइंट विच इज़ पॉइंट 33.